Hi friends, today we are going to see a very important topic, that is epidemiology in the subject of community health nursing. Welcome to the Nursing Star channel. If you are new to this channel, please like, share and subscribe this channel. We are going to study what is epidemiology, what is the meaning of the epidemiology, what are the types, what are the uses of the epidemiology. Okay, so let's start. The meaning of epidemiology. The literal meaning of epidemiology is derived from a Greek word. ये Greek word से derived हुआ है. कौन से word से? EP. EP means upon. Then second is demos. Demos means the people. And logos means knowledge. EP मतलब upon, demos मतलब people, and logos means knowledge. The simple meaning is what? Knowledge and study of anything that comes upon or affects people. Okay, knowledge and study of anything that comes upon and affect people. जो people को affect करता है, जो उन पर आता है, उसकी study करना. Okay, this is the meaning of the epidemiology. It is a Greek word. Now, what is the definition of the epidemiology? Epidemiology is the study of frequency, distribution and determinants of the health related states or events in a specified population and the application of the study to control the health problems. एपिडेमियोलॉजी क्या है? स्टडी है. किसकी है? फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स. अगर एक डिसीज है वो कितने फ्रीक्वेंसी में होता है, डिस्ट्रीब्यूशन वो कौन कौन से एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ कहाँ हुआ है, और डिटर्मिनेंट्स में उसका इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, कॉजिंग फैक्टर्स क्या है इन अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन. ओके, उसकी स्टडी करना है और एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टडी टू कंट्रोल द हेल्थ प्रॉब्लम्स. सो द डेफिनेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी इज हियर. 3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है उसमें: फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन और डिटर्मिनेंट्स. दिस इज गिवन बाय लास्ट इन 1988. Okay, now we will see what are the purposes of the epidemiology. First purpose, the to prevent, control and eradicate health related problems. Okay, to prevent, control and eradicate health and health related problems. Second, to reduce or minimize the impact of the problem. Problem का जो impact है वो minimize करना. Okay, this is the one purpose. And third is the to promote health and quality of life of the people in large, to promote the health and the quality of life. These are the 3 purposes of the epidemiology. Now, what are the aims and objectives? What are the objectives of the epidemiology? First, study of frequency and distribution of the health and health state or health related problems in the community. Objective क्या है? Study of frequency and distribution of health and health related problems in the community. Okay, second, identification of determinants. डिटर्मिनेंट्स क्या है, उसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, किसके वजह से ये डिसीज हो सकता है, कोई भी डिसीज क्या क्या कारण है जिसके वजह से डिसीज हो सकता है. थर्ड, नीड बेस्ड प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर प्रोग्राम. एक नीड बेस्ड प्लानिंग करना है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर प्रोग्राम. एक हेल्थ केयर प्रोग्राम ऐसा करना है जो कॉम्प्रिहेंसिव ओवरऑल with available resources to deal with health and health related problems. ये डील करना चाहिए किससे? हेल्थ एंड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से. फोर्थ है इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोग्राम टू प्रोवाइड फीडबैक. और क्या है? जो प्रोग्राम तैयार किया है उसका क्या करना है? इवेल्युएशन करना है फॉर द इफेक्टिवनेस. अगर वो इफेक्टिव है या नहीं है उसका क्या करना है? इवेल्युएशन करना है और उसका फीडबैक देना है. दीज आर द 4 objectives of the epidemiology. Now, what are the types of epidemiological studies? Descriptive studies, analytical studies और experimental studies. Descriptive है, analytical है, observational है, experimental है. ये अलग टॉपिक आप स्टडी करेंगे, उसमें हम ये डिटेल में देख लेंगे. ओके, फॉर नाउ कीप इन माइंड डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल. एपिडेमियोलॉजिस्ट का काम क्या है? Epidemiologist collects, compiles and analyzes the information about the factors
and describe the occurrence, distribution and causes of the disease. Epidemiologist क्या करता है? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, उसको कंपाइल करता है, उसको एनालाइज करता है और उसकी इंफॉर्मेशन क्या करता है? एनालाइज द इंफॉर्मेशन अबाउट द फैक्टर्स एंड डिस्क्राइब द ऑकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉजेस ऑफ द डिसीज. ओके, कॉजेस ऑफ द डिसीज फाइंड आउट करता है. Now, we will see what are the uses of the epidemiology. What are the uses of epidemiology? First, study the occurrence and distribution of disease. Study the occurrence and distribution of the study. Second, identify the determinants. What are the etiological factors? इसके लिए हम utilize कर सकते हैं. Third, diagnose the health status of the community by identifying health problems on the basis of morbidity, mortality pattern, and by identifying individuals who are at high risk or risk and require the special attention or care. Diagnose करना the health status of the community. Fourth क्या है? Estimate risk, that is statistical probability of disease. अगर एक डिसीज है वो कितने हद तक वो बढ़ सकता है उसका क्या करना है? एस्टिमेट करना है. रिस्क कितना रिस्कफुल है, हार्मफुल है, कम हार्मफुल है, माइल्ड है और हाई हार्मफुल है, वो हम एस्टिमेट कर सकते हैं. एक्सीडेंट्स एंड डिफेक्ट्स एंड द चांसेस ऑफ अवॉइडिंग इट, हाउ वी कैन अवॉइड द डिसीजेस. फिफ्थ, प्लान इफेक्टिव नीड बेस्ड हेल्थ केयर सर्विसेज. जब हम ये सब आइडेंटिफाई करते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ऑकरेंस, डिटर्मिनेंट्स, उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसीज, तो हम क्या करते हैं? द प्लान, नीड बेस्ड प्लान तैयार करना है, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रिपेयर करना है. नाउ सिक्स्थ, डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ द हेल्थ केयर सर्विसेज. प्लान एंड इम्प्लीमेंट द basis of predetermined criteria. This helps to plan better services in future. Determine the effectiveness. जो हेल्थ केयर प्लान किया है, सर्विसेज किया है, उसको क्या करना है? हमको इवेल्युएट करना है, उसकी इफेक्टिवनेस डिटरमाइन करना है. उसमें क्या लूप होल्स है, उसके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, थ्रेट्स क्या है, वो सब एनालाइज करने के बाद उसका फीडबैक देना है. ओके, so we can plan the better services in the future. Seventh, complete clinical picture of disease and describe the natural history. मतलब क्या? एक डिसीज का पूरा पिक्चर, मतलब उसका वो कैसे कैसे प्रोग्रेस करता है, उसका प्रोग्नोसिस क्या है, ओके, उसका प्री पैथोजेनिक स्टेज क्या है, पैथोजेनेटिक स्टेज क्या है, अर्ली डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं अपन, वो उसका सब साइकिल जो है डिसीज का, उसको कहते हैं कि नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिसीज. ओके, उसको स्टडी करना. एट्थ है, आइडेंटिफाई सिंड्रोम्स बाय डिस्क्राइबिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एसोसिएशन ऑफ द क्लिनिकल फिनोमेना इन द पॉपुलेशन. आइडेंटिफाई द सिंड्रोम. जो सिंड्रोम है, जो सेट ऑफ सिम्टम्स है, उसको आइडेंटिफाई करना है. अगर कोई डिसीज है, उसका सिंड्रोम, उसका सेट ऑफ सिम्टम्स अपने को आइडेंटिफाई करना है. इसके वजह से हम क्या कर सकते हैं? डिसीज का निदान, मतलब अर्ली डिटेक्शन इजीली कर सकते हैं. ओके. नाइन्थ इज फोरकास्ट लाइकली ऑकरेंस ऑफ सर्टेन डिसीजेस ऑन द बेसिस ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ चेंजिंग ट्रेंड्स. चेंजिंग ट्रेंड्स जो है फोरकास्ट करना है, मतलब भविष्य में ये डिसीज है वो हार्मफुल हो सकते हैं, ये आ सकते हैं, उसके लिए हम प्रिपेयर रहना चाहिए. इसके लिए क्या करते हैं? एपिडेमियोलॉजी, उसका स्टैटिस्टिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है. स्टैटिस्टिक को स्टडी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. सो दिस वाज द एपिडेमियोलॉजी व्हाट वी हैव सीन इन दिस. एपिडेमियोलॉजी मीनिंग, okay, it is a Greek word. Okay, then definition, purposes, aims and objectives, types and uses. If you are new to this channel, please like, share and subscribe this channel so that we can study other topics of the nursing related subjects. Thank you.